Before we begin, I'll just brief that what structure we will follow in this course. So, right, because this course will be covering both CBSE or whatever your board is, ICSE plus the competitive level. Right, so there will be one theory notes that I'll be giving. This is a handwritten theory notes. Like, ठीक है, तो ये आपको रखना है, but this is for the school exam, for the board exam, not for the competitive level. You are supposed to learn each and every derivation in this. वो मेरी मतलब मैं किसी से लिखवाए हैं. But apart from that, you also will prepare your own notes. There's nothing like your own handwritten notes. So we'll also prepare the notes in the class. Textbook that you have to follow is NCERT. 12th NCERT is good enough. 11th was a wastage, but 12th NCERT and then SL Arora. If you want to go in depth, if you don't want to go in that depth in this school level, board level, it's perfectly fine. NCERT level is NCERT class 12th is sufficient enough for the theory. Questions के लिए हमें कुछ और book चाहिए होंगे that I will provide you the questions. Then we will follow this book. Those who are preparing for the JEE and similarly identical for NEET. Those who are preparing, those who are not, it's fine. But every class, or no, not every class, every week, there will be one such sheet, worksheet that we will solve in the class. Because of the COVID and all, last year, the whole year class was online only. So I missed this part because in this we learned. Okay, so this is like DPP, this will be topic based. Every topic that I will be covering, I will be providing you this type of DPP. I will share in the group. I think the last class it would have been shared. I'll ask to share in the group so that everybody had the access. Correct? Apart from this, there will be an online test every week of the same topic in your application in your account, and all the classes will be available for as a recording for use. Correct? Right. तो अब हम थोड़ा quickly start कर लेते हैं other than wasting time. How was the 11th physics? How was the experience of 11th physics? Yes, Mr. Sagar. समझ में आई ऊपर से कहीं भगवान जाने क्या हुआ कुछ पता नहीं पास हो गए चीटिंग गूगल देता ऑनलाइन तो यही हुआ कुछ हाँ ठीक है तो उसके लिए एक और प्लान है आई विल बी आल्सो रिवाइजिंग सम नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11 ड्यूरिंग द होल कोर्स 11th हम पूरा भी पढ़ते हैं आफ्टर फिनिशिंग द 12th in October we will be covering the whole 11th syllabus again for the competitive part. Those who are not preparing for competitive, they will be given the revision of class 12 by another teacher who is my teacher. Another teacher is there who will be taking care of your board preparation. Right? Okay, so let's quickly begin the first chapter of NCERT. इन्होंने किया है वो थोड़ी देर तक चुप रहेंगे बोर्ड दिख रहा है थोड़ा सा हल्का रिफ्लेक्शन है आई थिंक यू विल हैव टू मैनेज सर ऊपर का हाइड हो रहा है हाँ यस सर ऊपर का थोड़ा सा हाइड हो रहा है यस ये सिर्फ सही है हाय सर Sorry, madam. Okay, there is some reflection, but I think okay, I'll take care of it. I'll write below it. Electric charge and P. Okay, the basic difference between the class 11 physics and 12 physics is 12 physics is very easy as compared to class 11. क्यों? क्योंकि 12 physics में वो पढ़ेंगे जो दिखता नहीं. Mostly it is not seen. Charge, current, we cannot see. Right? Light, we cannot see. So the possible variations थोड़े कम है. Possible variations relatively less. इसलिए it is some concept based concepts are limited. तो 11th में पढ़ा जैसे mechanics. Mechanics में हम motion पढ़ते हैं, rotation पढ़ते हैं. There are infinitely many possibilities. Hollow cylinder, solid cylinder, काट दो, आधा काट दो, पूरा काट दो, friction, anything.
That's how mechanics is slightly complicated, but 12th is much easier. Much easier in terms of variation of the questions. And it is half also. We'll finish the whole syllabus positively by mid October. Right? Or 11th में जनवरी तक लगता है. So 12th syllabus is almost half. Right. अगर 11th में आपने जो 30% reduce था एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा. सर आपकी वॉइस थोड़ी लैग हो रही है. मेरी वॉइस थोड़ी लैग हो रही है. Okay, I think internet आपकी connection. वॉइस ठीक आ रही है सर. आई थिंक जिसने बोला कि हाँ, connection you'll ठीक have to change your network, I think, because here it seems to be fine, showing 5G network. So just check or rejoin again, अगर ऐसा कुछ है. Okay, so let's start with the fundamental. There are two fundamental property of matter. कौन सी? One is mass, another is charge. एक 11 में जो first chapter था physical world, पढ़ा किसी ने? नो सर. No, sir. मैंने पढ़ाया है. फिर अच्छा लेट जो है कोई बात नहीं. उसमें बस एक ही काम की बात थी, फंडामेंटल फोर्सेस. It is slightly related, so that's why I'm revising the bit of 11th also. Fundamental forces in nature. Fundamental का मतलब क्या होता है? That these are the most basic forces. हम जितने भी forces nature में use करेंगे या feel करेंगे, all of them will be one of these, or will be made up of one. कौन से होते हैं fundamental force? सर हम इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड के आगे तक भी पहुंच चुके थे, उससे कंटिन्यू करेंगे. क्या कह रहे हो? सर आपने जो फर्स्ट सेशन लिया था सर, डेमो सेशन, उसमें आपने इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड का वो सर क्वांटाइजेशन तक पढ़ा दिया सर. उसके आगे कंटिन्यू करेंगे अभी? बेटा ये नया बैच है, वीकेंड बैच है, इसमें फर्स्ट क्लास के लोगों की आज. सर वो सर डेमो सेशन था क्या? बेटा डेमो जैसा कुछ नहीं होता. लेक्चर 1 लेक्चर 2 डेमो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. उसको समझो, दैट इज द लेक्चर. दिस इज द सेम लेक्चर दैट वाज द लेक्चर 1 फॉर वीकडे बैच ऑन मंडे. वीकेंड बैच इज स्टार्टिंग टुडे, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12 सिलेबस. कौन बोल रहा है? वैभव. यस सर. हाँ, so if you have already attended that Monday lecture the last weekdays, you may leave, or if you want to, you can revise it again. Okay? यस मैं ये आज ना वीकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है. वीकेंड बैच की पहली क्लास. टुडे आई एम स्टार्टिंग क्लास 12 for this बैच. यस सर. वेरी नाइस. लक्ष्म, फंडामेंटल फोर्सेस कौन से होते हैं? There are 4 fundamental forces. पहला ग्रेविटेशन फोर्स. Gravitational force or electromagnetic force. Second is electromagnetic force, and third is दो होते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नहीं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है. इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. नेचर में, दुनिया में जितने भी फोर्सेस आप देखोगे, दे विल बी वन ऑफ दीज 4 टाइप ऑफ फोर्सेस. वीक न्यूक्लियर फोर्स. इसके अलावा और कोई फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता. मतलब हम उसको अलग अलग नाम दे देते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन. जैसे ग्रेविटेशन फोर्स किसकी वजह से होता है? बिकॉज एवरी मैटर, एवरीथिंग हैज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मास. एवरी मैटर हैज प्रॉपर्टी ऑफ मास बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एटम. एटम में मास होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सबका मास. ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मास, द फोर्सेस एक्टिंग विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे हमारा वेट is a kind of gravitational force, जो कि अर्थ ने अपने मास की वजह से हमारे मास को पुल किया. Right? Electromagnetic force, similarly, there is another fundamental property that is possessed by the matter, charge. ये सब में होती है, लेकिन total charge 0 हो जाता है. There will not be any body which does not possess charge. Charge है, but number of electrons and number of protons same है, and that is why it becomes 0. दो neutral bodies के बीच में कोई फोर्स हो सकता है चार्ज वाला. ओके. वंडर वॉल फोर्स सुना है?
van der Waals force of attraction. Yes sir, intermolecular force of attraction. ओके, मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना होता है? अगर हम एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं CH4 एंड CH4, दोनों न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स हो सकता है, और होता है क्यों? क्योंकि इसके इंडिविजुअल चार्जेस, इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर कुछ प्रोटॉन्स होंगे, दे अट्रैक्ट। इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल, इसके प्रोटॉन को रिपेल, इसके इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट, एंड सो ऑन। There will be 4 type of forces: electron repulsion, proton repulsion, electron attraction, proton attraction. उन चारों का रिजल्टेंट आता है, दैट इज van der Waals force। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसमें चार्ज की वजह से फोर्स नहीं होगा। देयर माइट बी मेनी पॉसिबिलिटीज, करेक्ट? ओके, व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस? बिकॉज़ हमें थोड़ा चार्ज की फीलिंग चाहिए। चार्ज का मतलब ये नहीं कि चार्ज एक्स्ट्रा है, तो चार्ज हमेशा होता है, बट इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड बिकॉज़ इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है? ग्रेविटेशन जैसे वेट हो गया, van der Waals force I just took the name because it is not, this charge is not the charge that we generally see feel। एक्स्ट्रा चार्ज है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव। किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, मतलब चार्ज है, बट इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड, करेक्ट? दो न्यूट्रल बॉडीज में भी अट्रैक्शन होता है, व्हिच इज कॉल्ड van der Waals attraction, केमिस्ट्री द मॉलिक्यूलर। अब आते हैं हम आगे, जस्ट आई एम डिस्कसिंग अ बिट ताकि 11th का भी साथ साथ दिमाग में रहे। 11th is very crucial to understand। If I talk about the friction, friction इन चारों में से कौन से टाइप का फोर्स? Body is trying to move, there is a rough Kinetic surface। friction. नहीं, फ्रिक्शन तो है ना, दुनिया में बस 4 ही फोर्सेस हैं बेटे, लगभग Sir, electromagnetic only 4 forces. टाइप ऑफ फोर्सेस, या तो ग्रेविटेशन होगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, या स्टोनिक होगा, या मैग्नेटिक होगा। Any force that exists will be one of these 4 because they are fundamental forces, और कोई फोर्स ही नहीं है। फ्रिक्शन इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स? फ्रिक्शन मास की वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है। उनमें से Sir, 4 में से बताना है जो electromagnetic। आपने ऊपर लिखा है क्या? Electromagnetic force. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाउ? इस बॉडी में कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा इसके मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस पे, एटम्स के न्यूक्लियस पे। ये जो रफ सरफेस है, रफ सरफेस का मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, बिकॉज़ सरफेस एरिया हैज इंक्रीज्ड एज कंपेयर्ड टू द फ्लैट। यहाँ पर ज्यादा चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे पास में। Two rough surfaces, when they are placed in contact, इनके positive, negative and opposite type of charges, they make a mechanical bond. They attract each other and they stick together with a small mechanical bond, which is due to the charge. When you are trying to move it, ये जो इनकी bonding हो रखी है, that opposes it, and due to which friction opposes the relative motion. So friction is a kind of electromagnetic force. Understood? एक और फोर्स लगता है, जैसे हम सरफेस पे खड़े हैं, हमारा नीचे वेट को संभालता कौन है? Gravitational force. संभाला किसने? तोड़ के अंदर चले जाएंगे ना अगर कुछ नहीं होगा बैलेंस करने वाला। नॉर्मल रिएक्शन, देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन। दैट नॉर्मल रिएक्शन इज व्हाट काइंड ऑफ फोर्स? ग्रेविटी तो उस पे हाथ की वेट नहीं लगाया ना, ये तो सरफेस का टैलेंट है। हार्ड सरफेस पे खड़े हो तो नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस कर रहा है, पतले से किसी प्लाईवुड पे खड़े हो जाओगे तो तोड़ के पीछे, राइट? अर्थ तो अभी भी सेम है। Normal action is not applied by the earth, not applied by the mass. Normal action is the property of the surface. किस surface पे आप खड़े हो? Hard surface है, it will be able to provide normal action equal to your weight. Normal action is again electromagnetic in nature. इसके पॉजिटिव और नीचे वाले के जो पॉजिटिव चार्जेस है, उनका जो रिपल्सिव फोर्स है, that is normal reaction. So, other than weight, जितने भी आप commonly force यूज करोगे या देखोगे या सुनोगे, that is electromagnetic in nature. So everything comes by the, this ink is sticking on the board by which force? Electron. इसको बोलते हैं adhesive force। पढ़ा था ना 10th 11th में fluid chapter। अबे 11th में बोला, 11th में गलती से बोल दिया था 11th। Adhesive and cohesive, two type of forces। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में जो फोर्स होते हैं वो कोहेसिव,
डिफरेंट टाइप में जो होते हैं वो एडहेसिव, समझ गया ना? सो एवरीथिंग, हम खड़े हैं, नॉर्मल रिएक्शन से चल पा रहे हैं, फ्रिक्शन से लिख पा रहे हैं, बाय द चार्जेस सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये कोहेसिव एवरीथिंग और एडहेसिव दोनों अट्रैक्टिव होते हैं ना? दोनों अट्रैक्टिव होते हैं, यस, दोनों अट्रैक्टिव, व्हिच इज अगेन अ टाइप ऑफ वंडर वॉल फोर्स ओनली, दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर सेम टाइप का मॉलिक्यूल है तो उसको हम कोहेसिव बोलते हैं, अपोजिट डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल है तो एडहेसिव। सो ये एक इंक है और जो स्क्रीन इसके ऊपर एक फिल्म है, इनके बीच में दैट इज एडहेसिव फोर्स, राइट? टेंशन में क्यों? रिलैक्स, जो समझ में आता है वो बोलना है, गलत सही की परवाह नहीं करना। वेरी गुड। So which means charge plays a very important role in the existence of this whole world. Gravitation का रोल कहाँ पर होता है? दुनिया को चलाने में, यूनिवर्स, प्लैनेट, सन, स्टार, गैलेक्सी। हमारे लिए ना ही हो तो भी अच्छा है, हमारा वेट थोड़ा कम हो जाएगा ना, रिलेटिवली। जस्ट ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वेरी क्वेश्चन। हम चल रहे हैं, फ्रिक्शन से खड़े हैं, नॉर्मल रिएक्शन से लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। हमारे जो मोस्ट ऑफ द गैजेट्स, टच स्क्रीन, टच करने में क्या होता है, क्यों चल जाता है? व्हाट इज द रोल ऑफ टचिंग? So it creates potential in the screen which creates electricity throughout the phone. उसके स्क्रीन पे चार्ज होता है, यस, दैट पिक्सल एंड ऑल, देयर इज सम चार्ज देयर इज, the screen has a charge, when you touch it the charge goes through your body, neutralizes through your body, और उसके साथ जो बैकएंड में एप्लीकेशन में कनेक्टेड होता है वो सर्किट ऑन हो जाता है ना, मैजिक। पहले आता था 2005 तक कैपेसिटिव टच स्क्रीन नहीं था, उसके लिए एक प्लास्टिक मिलती थी, प्लास्टिक की कुछ, यू हैव टू टच एंड देन ओनली इट वर्क्स। अभी भी अगर आपको बेटर सेंसिटिविटी चाहिए, ड्राइंग, पेंटिंग कुछ करनी है, एप्पल पेंसिल या जैसे पेंसिल आती है, दैट स्टाइलस इज रिक्वायर्ड बिकॉज दैट हैज अपोजिट चार्ज एंड व्हेन यू टच इट उसी हिसाब से उसकी सेंसिटिविटी डिसाइड हो जाती है, हाउ इट वर्क्स, राइट? सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी चार्ज, लेकिन चार्ज हमें फील तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई फोर्स ना लगे। सो कम बैक न्यूक्लियर, इसको छोड़ देते हैं, ये हमारे सेकंड बुक में है, इन द सेकंड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। ई ग्रेविटेशन आप 11 में पढ़ चुके हो। इसमें दो अलग अलग वर्ड है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो इज बिकॉज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, किसी भी बॉडी में चार्ज है अगर, या चार्ज चाहे रेस्ट में या मूव कर रहा हो, there will be always electro force, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक is between the two charges when they are static or in a state of rest, right? Tavin, your name is Tavin na, Tavin, it's a K, Tavin, very nice. What does it mean? Success, very nice, very nice. So DL भी successful, great. Okay, so magnetic क्या होता है? When charge starts moving, चार्ज अगर मूव करते हैं तो चार्ज के साथ एक और इफेक्ट आ जाता है, व्हिच इज करंट। द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, करंट, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वायर के अंदर, सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट एंड दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। सो एज अ कलेक्टिव both comes under the electromagnetic force. Two fundamental property, mass and charge. Mass हम 11 में पढ़ चुके हैं। How do we define mass? Suppose अगर हमें पता करना हो, definition of mass, what is mass? How do we define mass? Neeti, what is mass? Sir, amount of matter contained in the body. Yes. How That's a to qualitative definition. ऐसे न्यूटन से 1800 साल पहले ब्रह्मगुप्त ने ग्रेविटेशन थ्योरी भी दे दी, any two particles will always attract each other. But that is not supposed to be the gravitation first discovery or first study. Why? Because जब तक फॉर्मूला नहीं होता कैलकुलेट करने का मास क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे?
Yeah, sorry for the disturbance. एक बच्चा कहीं रास्ता भटक गया. Okay. So क्या बात कर रहे थे? ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं क्लास 11 में. मास कैसे डिफाइन करना, अमाउंट ऑफ मैटर और क्वांटिटी ऑफ मैटर इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड. ये भी फर्स्ट चैप्टर में था 11th में. जब तक कि हम मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं करते, एवरीथिंग इज बकवास इन साइंस. इफ यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट हाउ मच इज द मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब क्या? ये मैटर तो रैंडम है, कुछ भी है. हाउ डू वी डिफाइन मास, क्वांटिफाई मास? बाय द ग्रेविटेशन लॉ. एक बॉडी का मास 1 kg, दूसरे बॉडी का मास 1 kg 1 मीटर पे रखूं, अगर उसमें फोर्स 6.67 into 10⁻11 है ना. ग्रेविटेशन फॉर्मूला F is equal to g m1 up to by r square. So mass is a property by virtue of which a mass object attracts another mass object kept nearby. और उसको हम कैलकुलेट करते हैं by using this Newton's law of gravitation, universal law of gravitation. So mass की एक fundamental property है, the fundamental property of mass due to which the two bodies always attract each other. That is the definition of mass. Right? Here. Similarly charged. I did this much. Okay. Great. चार्ज क्या है? Similarly, by the same logic, चार्ज क्या है? Definition wise, अगर दो बॉडी में चार्ज है. Now we are talking about charge. Charge means the actual charge. अभी हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूल्स की, किसी बॉडी की, उसमें टोटल चार्ज हमेशा जीरो होता है. क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, they are always neutral and total charge is zero, but still there is effect of charge. जैसे वायर में जो करंट फ्लो होती है, what type of charge is there in a wire? Positive or negative? किसी मेटलिक वायर में नेगेटिव होती है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसमें जीरो चार्ज है. there is no charge, it is neutral. इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसी के खुद के है, बाहर से नहीं है. All the atoms of this metal, उसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपने बाहर लूज था, वो बाहर निकला है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जहां से निकला उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज. So overall it is neutral, but there is a motion of charge. Correct? इसमें चार्ज वाली प्रॉपर्टी जो हम भी डिफाइन करें, that will not be valid because this body does not have a net charge. चार्ज क्या है? किसी की समझ गए नहीं? करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, that is correct. और वो इलेक्ट्रॉन उसके खुद के अपने अंदर के ही, जितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स भी है. ओवरऑल करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. उसमें कोई भी टोटल चार्ज नहीं होता. तो अच्छी बात लगे वो स्टार मार करके लिखते जाना. बाकी तो लिखा हुआ है, नोट्स भी मिलेंगे और आपको हैंडआउट में नोट्स बना रहेंगे. बड़ी चीज है ना, ये बहुत बेसिक से कंफ्यूजन होता है. जैसे अनदर वेरी बिग क्वेश्चन, जिनको आता है आंसर मत बताना. इज देयर अ ग्रेविटी इन स्पेस? यस और नो? नो No. इसमें ग्रेविटी है या नहीं? क्वेश्चन पूछा sir. नहीं होता है. निखिल, हाँ, स्पेस में ग्रेविटी है कि नहीं है? है कैसे? तो कहते हैं स्पेस में ग्रेविटी नहीं है. हाँ, वेरी गुड. अभी सोलर सिस्टम रहेंगे, अर्थ के चारों तरफ मून कैसे रिवॉल्व करता है? बाय विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. राइट? हम भी अगर बाहर जाएंगे स्पेस में तो हमारे ऊपर भी वेट लगेगा, ग्रेविटी लगेगी, बट वो बहुत कम है. दैट इज नॉट जीरो. Only and only if you are confined in a satellite or in a space shuttle, तो आपको अपना वेट फील नहीं. समझ गए? जैसे हम ग्राउंड पे भी खड़े हैं, कोई आवाज ऐसी वैसी बातें कर, दिस इज द वेट mg. हमें कौन सा फोर्स अपना वेट फील कराता है? नॉर्मल Reaction force. नॉर्मल रिएक्शन, नॉट द mg. mg थोड़ी अगर हम हवा में जंप करते हैं किसी बिल्डिंग से, जब तक हवा में तब तक अपना वेट फील नहीं होता है ना. क्यों? mg तो तब भी लग रहा है, mg is still there, but there is no surface to apply normal reaction. normal reaction नहीं है, इसलिए हमें अपना वेट फील नहीं. करेक्ट? जब जमीन पे आ जाएंगे, धरती पे, then the weight is counterbalanced by the normal reaction. स्पेस में ये प्रॉब्लम है, स्पेस में कोई सरफेस नहीं है जहां पे आप खड़े होगे
आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वेट फील होता है। हमारा वेट फील होता है बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अगर किसी लिफ्ट में है ऊपर जा रहा है एक्सीलरेट करके तो वेट बढ़ जाता है, बढ़ा ना 10th 11th। अगर लेफ्ट में बैठ के नीचे जा रहे हैं तो वेट कम हो जाता है और लिफ्ट टूट जाएगा फ्री फॉल होने लगे तो वेट लेस हो जाता है, which is the same case as normal reaction becomes zero. So anyways, वापस आ जाते हैं, come back to charge. Charge की जब हम बात करें then now it is a net charge. It's not talking about the electrons or protons. किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज है वो कैसे पता करें? The property of a body by virtue of which it the property of a body by virtue of which, ये आपको अभी लिखना भी है, आपको हैंडेड मिलेगा बाद में, नो प्रॉब्लम, बट जब हम लिखते हैं तो हमें साथ साथ याद भी हो जाता है। by virtue of which a charged body, प्रैक्टिकली तो हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, है ना? बट हमें कैसे पता है कि किसी बॉडी में चार्ज है? नहीं पता। if two bodies are attracting each other, it might be because of mass, हो सकता है ना, मास की वजह से अट्रैक्शन होता ही होता है। So, अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही है तो हम 100% गारंटी नहीं ले सकते कि दोनों बॉडी में चार्ज ही है और एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव या अपोजिट है चार्ज। हाइपोथेटिकली हो सकता है साइज छोटा है बट मास बहुत ज्यादा है एंड दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। सो व्हेन वी डिफाइन वी हैव टू गिव द करेक्ट डेफिनेशन। बुक में लिखा होता है प्रॉपर्टी बाय व्हिच वी अट्रैक्ट और रिपेल, बट अट्रैक्शन इज नॉट अ गारंटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज, राइट? The property of body by virtue of which a charged body repels, only and only repels another similarly charged body. Attraction is not a guarantee of charge. Attraction से हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। Two bodies are attracting, ऐसा हो सकता है कि दोनों में चार्ज ना हो, ऐसा हो सकता है सर वो एक में ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो सकता है इसलिए ना। हाँ ग्रेविटेशन भी हो सकता है, बट ग्रेविटेशन के अलावा भी और पॉसिबिलिटीज है। एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी वो भी अट्रैक्ट करेगी, उसमें पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है न्यूट्रल है। So there are many possibilities, अभी और पढ़ेंगे हम। There are some more surprising possibilities जो आपको शायद लगेगा कि गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि दो पॉजिटिव चार्ज भी अट्रैक्ट करें, देखते हैं, हो सकता है जादू। एक बॉडी दूसरे सिमिलरली चार्ज बॉडी को रिपेल करती है, ओनली देन वी कैन से दैट बोथ द बॉडीज हैव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो इसका जो स्टेटमेंट होता है, द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन। अगर हम सपोज चार्ज कुछ टेस्टिंग करें, वी हैव सम क्वेश्चन ऑन दिस। रिपल्शन इज ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। एंड which of the following is actual test or true test of electrification? Electrification मतलब charged, attraction, repulsion, both none. Answer is only repulsion. Attraction is not a test by which you can Repulsion. guarantee. Only repulsion is the true test of electrification. अभी जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रॉन तो बाद में पता थे, पहले कुछ रैंडमली एक्सपेरिमेंट किए गए बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्लास रॉड को सिल्क से रख किया, प्लास्टिक से रख किया। सो अभी चार्जिंग जो हम बात कर रहे हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी सब में है लेकिन नलिफाई हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव दे कैंसिल आउट, अंदर अंदर अपना वो काम कर रहे हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, करंट में इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो कर रहे हैं, बट एज अ होल देयर इज नो चार्ज ऑन ए न्यूट्रल बॉडी, करेक्ट? बट अगर हम किसी बॉडी को चार्ज की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं जिसमें चार्ज पहले से नहीं है, मतलब टोटल चार्ज, ऐसे तो कोई बॉडी हो नहीं सकती इसमें चार्ज एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि सब में एटम है, सब में इलेक्ट्रॉन्स है, सब में प्रोटॉन्स है। Electrons, protons will always be there, right? Now, if we are talking about this property, the extra charge or the external charge. So, charge का मतलब क्या होता है? जैसे normally हम इंग्लिश में बोलते हैं, charge मतलब energize. In the normal state, ground state, you can say all the bodies, the atoms and electrons, they are in their ground state. सब अपनी अपनी जगह पे। If we supply anyhow energy, किसी भी तरीके से,
हीट करके, हैमर करके, रब करके, कोलिजन करके, मार मार के, anyhow by any means if you provide sufficient energy, वो sufficient भी हम अभी समझेंगे कितना है. If that energy is sufficient to remove the electron from the body, electron ही क्यों निकलता है, प्रोटॉन क्यों नहीं? सर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बॉन्डेड होते हैं इसलिए. क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बहुत रिजिडली बॉन्डेड है, न्यूक्लियस को तोड़ नहीं सकते, थोड़ा बहुत हिलाते हैं तो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है, राइट? करेक्ट. सो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन ज्यादा, ओवरऑल इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज. सो चार्जिंग प्रोसेस इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सम एक्स्ट्रा एनर्जी. जब हम बाहर से एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी देने के बहुत सारे तरीके. The body loses electron. Suppose अगर हम दो बॉडीज रब कर रहे हैं, प्लास्टिक एंड दिस इज रब, एक में एनर्जी मिली, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, किसमें आए, दूसरे, राइट? सो बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव पॉजिटिव चार्ज. And the body which gains electron, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, that becomes negative Negative charge. charge. So there are two type of charges. Due to the loss of electron, positive charge. Due to the gain of electron, negative charge. So, but this positive and negative is not similar to the positive and negative number. जैसे positive number, negative number आपस में related है. Positive बड़ा, negative +5 is greater than -5, right? But in the case of charge, plus Q is not greater than minus Q. It is different from minus. Plus Q is because of loss of electron, and minus Q is because of, right? So अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, we are पहले न्यूट्रल था, हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, उसके मास पे क्या फर्क पड़ेगा? What happens to the mass of body if it is positively charged? ध्रुव, So अगर if किसी it बॉडी is, को पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, मास इंक्रीज और डिक्रीज? so decrease हो जाएगा. इंक्रीज हो रहा है, लॉस हो गया ना, इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन में कुछ तो मास होता ही है, थोड़ा बहुत, मास स्लाइटली डिक्रीजेस. अब क्लास 11 में थे ना ध्रुव? यस, यू टुक द रोल. वेरी नाइस. पूरे साल पढ़ लिया, सकल आदमी खरीद. ओके, सेकंड वाले में मास बढ़ जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज गेन, मास स्लाइटली इंक्रीजेस. 11 में कम समझ में आया हो तो टेंशन मत लेना. 12th में हम पूरी 11 पढ़ते हैं और साथ साथ इस बार में स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा आधे एक घंटे का रिवीजन टाइप होता रहेगा. ऑनलाइन में कम समझ आता है, दैट इज विद एवरीवन. आपके साथ ऐसा हुआ तो कोई नई बात नहीं, ठीक है? राइट. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब जो हमने एनर्जी की बात की, दैट एनर्जी, व्हाट इज दैट एनर्जी, हाउ मच इज दैट एनर्जी, एंड हु विल डिसाइड कितनी एनर्जी देने पे चार्ज हो जाएगी बॉडी. जैसे अभी ये पेन चार्ज है, हमारी बॉडी चार्ज है, बॉडी चार्ज है कि नहीं, कैसे पता, कैसे पता? चार्ज है. क्यों? ये वूल क्लॉथ्स में फ्रिक्शन से ही थोड़ी सर बहुत हमें कभी कभी शॉक लगता है इसलिए चार्ज है. शॉक तो टच करने में लगता है कभी कभी. जैसे अभी हम सपोज कुछ इंसुलेटेड रबड़ की कुछ सैंडल है समथिंग पहने हुए, हमारी बॉडी पे जो चार्ज है, देयर इज ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ सम एयर रेजिस्टेंस. हवा में भी चार्ज है, एयर में चार्ज है नहीं है? है. डस्ट पार्टिकल्स है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स है, टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है व्हिच इज मच अबव द 0 केल्विन, राइट? तो हर जगह चार्ज. पता करना चार्ज है कि नहीं है, कोई भी सफेद कपड़ा ले लो, व्हाइट क्लॉथ, ड्राई क्लॉथ, वो अट्रैक्ट करता है, इट बिकम डर्टी. व्हाई? बिकॉज इट हैज अ चार्ज एंड डस्ट पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, इट स्टिक्स टू इट. समझ आ रहा है? चार्ज इज एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर. हमारी बॉडी में भी किसी भी टाइम पे ऑलवेज देयर इज सम चार्ज, पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं होता.
स्पेस में चार्ज है, बहुत तगड़ा चार्ज है इन सम पर्टिकुलर रीजन। मतलब स्पेस मतलब अगर आप आउटर स्पेस की बात करोगे तो वहां नहीं है, वहां पर एनर्जी है, कॉस्मिक पार्टिकल्स। कॉस्मिक पार्टिकल्स मतलब फोटॉन्स ऑफ मच 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 हायर एनर्जी। बट जैसे आयनोस्फीयर हो गया, so it is only made up of ions, charges. Outer space में there is no charge, but there is cosmic rays, cosmic particles, very huge amount of energy. But all the stars, सारे stars में क्या होता है, अंदर क्या है, गैसेस, और वो इतने हाई टेम्परेचर पे गैसेस किस फॉर्म में रहती है, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा इज इन विच फॉर्म, आयंस, गैसेस आयंस, राइट। और वहां से वो बीम निकलती है चार्ज पार्टिकल की इन द फॉर्म ऑफ फ्लेयर्स। समझ गए ना, आंसर मिल गया। तो हम टॉकिंग अबाउट डीप स्पेस जहां आसपास कुछ भी नहीं है, कोई स्टार कुछ नहीं है, दैट विल बी चार्ज फ्री। वेरी नाइस। हाँ, ये जो एनर्जी है कौन सी एनर्जी, इज दिस आयोनाइजेशन एनर्जी? कुछ हमने ऐसे ही पढ़ा था, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है ना केमिस्ट्री में, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। आगे कंप्लीट करो यार, मुझे नहीं आती केमिस्ट्री। यस, the energy, the minimum energy required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom. The last three word है isolated gaseous atom, that is important. This is not an isolated gaseous atom. ये क्या है? एक बार Suppose रिपीट कर मेरा दो पास प्लीज ball है। सर। हाँ बेटा, सर आयोनाइजेशन एनर्जी एक बार रिपीट कर दो प्लीज। Hessian energy is the minimum amount of energy. देखो मैं नहीं यहाँ लिख देना, the minimum amount of energy required to remove the electron from, लिख लो यार, याद हो जाएगी, आती है फिर भी एक बार लिखने से थोड़ा पेन ही खत्म हो। The minimum amount of energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. इसका यहाँ पे क्या रोल है वो भी हम समझेंगे। Isolated का मतलब, what is the meaning of isolated? यहाँ थोड़ा और खतरनाक हो सकता है। Isolate का मतलब इसके अलावा और कुछ है ही नहीं पूरे यूनिवर्स में। That is the meaning of isolated. There is nothing else present to transfer mass, transfer charge, transfer energy. जैसे हमारे केस में भी isolated system कुछ नहीं, universe is an isolated system. The whole universe is an isolated system. और कुछ नहीं. It is free expansion. It's getting expanded every day. It's free expansion. Expand हो रहा है ना, बाहर कुछ है नहीं. मल्टीवर्स हो सकता है, हमें पता नहीं। हाँ हो सकता है, हो सकता है, that is theory, I'm not saying that. हम अभी अपने यूनिवर्स की बात करें, हमारे यूनिवर्स के अगल बगल में कुछ भी नहीं है जिससे हम किसी भी मास का या एनर्जी का या चार्ज का ट्रांसफर। आइसोलेट का मतलब कि उसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं होना चाहिए, there's nothing else exists, that is the meaning of isolated gaseous atom. अब ये ना तो एक gaseous atom है, this is suppose some plastic ball या rubber ball, बॉल ए बॉल बी रब किया या प्लास्टिक को फूल से रब किया, कॉर्न को हेयर से रब किया, एनी सच प्रोसेस व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी, राइट। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि आयोनेशन एनर्जी जो है और ये जो हम यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं, आर दे रिलेटेड और शुड दे बी रिलेटेड? माय क्वेश्चन इज क्लियर। ये कौन सी एनर्जी है? गैसियस स्टेट में एक एटम से 12 इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी। यहाँ पे हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी, फ्रॉम अ मेटल, फ्रॉम अ नॉन मेटल, किसी भी बॉडी से सरफेस से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। दोनों डिफरेंट है वैसे, ठीक है ऐसे एटम। यहाँ पर इस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, जो शायद आपने सुना होगी ना, डिवाइडेड बाय 5। वर्क फंक्शन 11 में है कहीं? सर h mu नॉट।
इसमें नहीं, केमिस्ट्री में अभी ये सब केमिस्ट्री चल रही है। हाँ, यस वैभव, यू आर सेइंग समथिंग। सर H mu naught वो तो किसी भी एनर्जी को बोलते हैं। H mu naught is a formula for So energy. work in terms of pressure and volume. नहीं। एक केमिस्ट्री में चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, आना ले कट तो नहीं हुआ था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक छोटा सा पार्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Yes sir. Yes sir. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? सर वो वाला जब इफेक्ट मेटल सरफेस पे कोई लाइट को Yes, थ्रो sir. करते हैं सर, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिसे आप कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। और इसके लिए एग्जैक्ट डेफिनेशन थी when the photon of sufficient energy means energy greater than work function of that particular metal. किसी भी मेटल से, किसी भी सरफेस से जब उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी का फोटोन डालते हैं, then electron comes out, and that phenomena is called photoelectric emission, and that is photoelectric effect, right? हर एक लाइट से फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता, सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, एंड द सफिशिएंट एनर्जी मींस एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। बैटरी, oh my god, okay, but just wait, I am just connecting to the charger, wait. Okay, sorry for the inconvenience. Thank you. Actually, I had 3 back-to-back classes with the same mode. Phone battery got drained out. Yes. Okay, come back. Work function क्या है? Minimum energy required to remove electron. देखो work function की definition. Work function. The minimum energy required to remove an electron from the surface of a metal. वैसे तो metal के लिए डिफाइन होता है क्योंकि नॉन मेटल के लिए बहुत ज्यादा होगा, ठीक है? From the surface of a metal bracket में body, right? सरफेस से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन और आयरेशन एनर्जी में रिलेशन क्या है वो भी समझ लेते हैं। थोड़ा केमिस्ट्री हम चल रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर बेटा वर्क फंक्शन आयरेशन एनर्जी थी किसी भी गैस से, जब ये गैस के फॉर्म में, जैसे ये भी समझ लो प्लास्टिक की बॉल है, पहले उसको अलग अलग एटम में ब्रेक करो, कितनी एनर्जी दोगे, अपने एटम्स में फ्री हो जाए, ईच एटम इज फ्री,
और फिर उस एटम उस फ्री वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। करेक्ट। तो ये जो एनर्जी है बॉडी को छोटे छोटे गैस में चेंज करने के लिए, ये वो सॉलिड उसमें एक चीज और इन्वॉल्व हो जाती है कॉल्ड एज एंथैल्पी और हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एनीथिंग इनटू इट्स इंडिविजुअल फ्री एटम्स। तो बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसको इसके छोटे छोटे एटम्स ब्रेक करने की एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसमें वर्क फंक्शन और ऐड कर दो, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी और ऐड कर दो, दैट इज द वर्क फंक्शन। समझ आ रहा है? एटमाइजेशन मतलब किसी भी सॉलिड को उसके छोटे छोटे एटम्स में गैसियस फॉर्म में ब्रेक करने की एनर्जी, राइट। और फिर जब फ्री एटम मिल गया उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। सो work function is a combination of enthalpy of atomization plus ionization energy. So they are related but not exactly same. समझ आ रहा है? तो किसी को डाउट हो पूछ लेना, ये सारी चीजें हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे अगेन, बट ये जो कॉन्सेप्ट था एनर्जी वाला, ये समझना जरूरी है किस एनर्जी की बात कर रहे हैं। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। एनीहाउ बाय एनी मींस इफ यू प्रोवाइड द हीट, if you provide the energy so that electron is lost, that body will become Excuse me, sir. yes beta So, sir, the main difference between ionization and enthalpy and the work function is that one system is in isolated and the other is a normal system. and this is defined for gaseous and this is defined for any solid surface, that's the difference. Okay, एक so free दोनों gas ही isolated system होगा. आइसोलेटेड तो ही, मतलब इसके आसपास भी कुछ होना नहीं चाहिए। आइसोलेट का मतलब कि ऐसा सपोज ये इसके पास में भी दूसरा है, वो अपने आप पुल कर रहा है विद दिस ओन एनर्जी, दैट एनर्जी विल बी लेस देन बफर। आइसोलेट का मतलब होता है उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए. Yes, sir. राइट। डिफरेंस मेन क्या है? एनर्जी गैसियस एटम में से गैसियस फ्री एटम से निकालने की, और ये किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी, करेक्ट। Okay, sir. बट जो प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी लो है, उसका वो फंक्शन भी लो होगा, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी होती है ज्यादा, मेटल या नॉन मेटल? मेटल की। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज, metals will be easily charged और metal ions will be easily positively charged। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने। So the experiment that was performed to check and verify these type of charges, ये वर्ड वर्क फंक्शन आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहले पढ़ा होगा in class 12. Photoelectric effect is in detail in physics also, the second part of NCERT. So we will then see when first detail atomization is depend करता है on what factor it depends, right? So next is अगर किसी ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ, glass rod is rubbed with silk cloth, glass acquires one type of charge, क्योंकि पता नहीं था, देख के तो पता नहीं पड़ता what is the type of charge. So glass rod acquires one type of charge, जितना ग्लास में होगा उसी का अपोजिट सिल्क में होगा, बिकॉज एक ने इलेक्ट्रॉन दिया है दूसरा लेगा इलेक्ट्रॉन। टू ग्लास रॉड रिपेल्स ईच अदर, क्योंकि हमारी डेफिनेशन थी भी टू सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस विल ऑलवेज, ये पता नहीं इसमें कौन सा चार्ज है, बट जो भी है वो सेम टाइप है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, दे रिपेल ईच अदर। अनदर एक्सपेरिमेंट, प्लास्टिक रॉड और इबोनाइट रॉड rubbed with fur or wool. Plastic rod rubbed with wool or fur, it acquires one type of charge. Now two such plastic rod again repel each other. So दो ग्लास में एक टाइप का चार्ज है, दो प्लास्टिक में एक टाइप का चार्ज है, but when a glass and plastic rod is brought together, it repels, sorry, it attracts.
दो ग्लास रॉड रिपेल करती है, दो प्लास्टिक रॉड रिपेल करती है, बट one glass and one plastic attract each other. So this is confirmed that the type of charge that is possessed by glass and plastic will be of different type, opposite type. अगर सेम टाइप के होते तो हमेशा रिपल्शन। अब हमें यहाँ पर ये समझना है या गेस करना है या वेरीफाई करना है in which of the rod charge is going to be positive and on which it is going to be negative with some logic randomly. ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, एक चार्ज ग्लास में, प्लास्टिक रॉड को वूल से रब किया, देयर इज अ टाइप ऑफ चार्ज इन प्लास्टिक। हमें ये बताना है ग्लास में पॉजिटिव होगा या प्लास्टिक में पॉजिटिव होगा विद सम लॉजिक दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस क्लास। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? हमें पहले वाले सिचुएशन में ग्लास में सिल्क से रब किया, रब करने से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी हमने देखी, राइट? फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोवाइड्स दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड। नाउ द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा और कौन गेन करेगा, ये हम कैसे चेक करेंगे या कैसे हम पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कैन वी फाइंड द टाइप ऑफ चार्ज possessed by a body or not? If yes, then how? Yes. ग्लास में पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज? रिद्धि, ग्लास will have पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर सिल्क से रब करते हैं? So positively charged. Positive charge. Positive charge. Why? What is glass? What is the chemical formula for glass? हाँ, सही बोला, जोर से बोलो। सिलिकॉन। तुमने नहीं बोला? ओके, सिलिकॉन। सर पॉलीमर है क्या ये? नहीं, पॉलीमर नहीं है। सिलिका, सिलिका इज द सैंड, सैंड इज सिलिका। सिलिकॉन वो है जैसे चिप बनाते हैं, जैसे निकालते हैं उसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिलिकॉन इज अ मेटल। सिलिकॉन इज अ मेटल, सेमीकंडक्टर मतलब मेटलिक फॉर्म में। व्हाट इज ग्लास? ग्लास, हाँ सही बोल, उधर से सिलिका को हीट करते हैं, वेरी गुड। सिलिकेट्स को हीट करते हैं, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। सिलिकेट्स, सिलिकेट्स भी सैंड में ही होते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। मिट्टी नहीं, मिट्टी को हीट करोगे तो नहीं बनेंगे। टाइप ऑफ सैंड, क्रिस्टल्स, उनको हीट करते हैं। सैंड, तो सैंड होती है चमकने वाली। दैट सैंड व्हेन इट इज हीटेड, मेल्टेड इन द मोल्टन फॉर्म, सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है वो, उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो ग्लास का दूसरा नाम है, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। देयर इज नो केमिकल कंपोजिशन इज नॉट चेंज। उसी को मेल्ट किया और उसके बाद स्लोली स्लोली कूल करते हैं और वो कूलिंग प्रोसेस में ही अलग अलग तरह का ग्लास बनता है। द मेथड ऑफ कूलिंग, टफेंड ग्लास, है ना? समझ गए ना? बुलेट प्रूफ ग्लास, बीच में क्लियर और डाल दी, कूल करते रहे। तो ओके, कम बैक। ग्लास में क्या है? सोडियम कैल्शियम। जब मेल्ट करेंगे टेम्परेचर मिलेगा तो सोडियम कैल्शियम इज फ्री स्टेट। सोडियम एंड कैल्शियम आर मेटल और मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन, वो भी सबसे फर्स्ट वाला मेटल जिसकी आयनेशन एनर्जी सबसे लोवेस्ट। ग्रुप 1 की आयनेशन एनर्जी सबसे कम होती है। ग्रुप 1 आयनेशन एनर्जी इज लीस्ट, तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, बिकॉज इट इज सोडियम एंड कैल्शियम एंड ऑल अदर मेटल आयंस, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, इसलिए ग्लास में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ग्लास विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, सिल्क विल एक्वायर सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। So glass has positive charge because of its low work function. अगर आपको लैंग्वेज में लिखना है तो because it is an alkali metal or it is a metallic ions, due to its low work function, glass rod has tendency to lose electron and become positively charged. Correct? Silicon पे same amount of negative. Plastic is non-metal, carbon or sulfur. Non-metal की tendency होती है electron को gain करने की. It accepts electron, plastic will be negatively charged. So two glass rod means two positive charge, they are repelling each other. Two plastic rod means
Two plastic rod means two negative charge, so that's why they repel each other. And one glass and one positive means one glass rod and plastic rod opposite charges. Correct? If suppose I run glass rod with wood, क्या होगा? Glass rod को wood से रब करें फिर वही होगा. But difference क्या होगा? Charge थोड़ा कम आएगा. Why? Because this is relatively smoother surface, friction कम होगा. समझ आ रहा है ना? ग्लास को जब सिल्क से रब करें तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी, इसलिए अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा था. अभी इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, बट ग्लास की टेंडेंसी अभी भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की. जैसे ये ग्लास है और ये सिल्क, सपोज अगर हम दो ग्लास रॉड पे रब करें फिर तो दोनों का वर्क फंक्शन सेम है. देन हाउ डू वी डिसाइड व्हिच शुड बिकम पॉजिटिव, व्हिच शुड बिकम नेगेटिव? मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? थोड़ा मतलब हम ऐसे ही डिस्कशन करके करेंगे क्लास, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड एंड फील द कॉन्सेप्ट. बुक में थ्योरी सारी लिखी हुई है. ठीक है. अगर two plastic ball है, two plastic ball rub together, which will acquire positive charge and acquire negative, जब दोनों ही same है. Both are identical plastic balls. न्यूट्रल ही रहेगा. तो बलून को रब करो आपस में. यस. हाँ, क्या होगा इसका आंसर है? दो प्लास्टिक बॉल है, दो रबर बॉल रब करते हैं, दो बलून बलून को रब करते हैं, बलून बिकम चार्ज. थोड़ी देर के लिए उसको आप दीवार में चिपका भी सकते. क्वेश्चन है, अगर दो प्लास्टिक बॉल को दो प्लास्टिक रॉड को रब कर रहे हैं, विल देयर बी अ चार्ज? यस और नो? यस. बस तो हो गई, एनर्जी है तो मिल ही रही ना. बट प्रॉब्लम क्या है? the amount of charge will be less, और वो चार्ज थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा. Why? Because दोनों में से किसी की भी ज्यादा टेंडेंसी नहीं इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की. They both will come back, they will take away electrons या एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रॉन लेके they will become एयर से इलेक्ट्रॉन या चार्ज से लेके they will become, जैसे बलून बलून को रब करो, चार्ज आ जाता है, उसको चिपका दो, चिपक भी जाता है बॉल, पर थोड़ी देर में गिर जाएगा. क्यों? क्योंकि अब उसका चार्ज न्यूट्रलाइज. किसने न्यूट्रलाइज किया? ऐसे क्वेश्चन है इसमें. किसने न्यूट्रलाइज किया? एयर, एटमॉस्फेयर. राइट. सो इसमें भी चार्ज होगा, बट द अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी लेस. जब दोनों में से किसी एक की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा देगा, इसलिए चार्ज भी ज्यादा. कैन नॉट सी ए और बी में किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव देख के नहीं. बिल्कुल समझ आ रहा है सारा? सर यस बॉस, बोलो. सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड से चैप्टर पढ़ा रहे हो सर, ये 12th का फर्स्ट चैप्टर है ना? हाँ बेटा, ये 12th का फर्स्ट चैप्टर है, बट बुक में सब नहीं है, सब हम वैसे ही थोड़ा बकवास बातें कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए. बेसिक चार्ट मतलब बुक में है, ऐसा नहीं है. आई एम कवरिंग योर फर्स्ट बुक फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 सिलेबस, बट थोड़ा मोर बेसिक, मोर फंडामेंटल लेवल, मोर थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस. राइट? यस बाबू, बुक है ना आपके पास 12 की कोई? दूसरी भी बुक खरीदूंगा. हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, बुक में मिल जाएगा. ये सब फर्स्ट चैप्टर ही है, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट कवर कर रहे हैं, बट थोड़ा सा डिटेल में इन डेप्थ. इफ क्या एक बार समझ में आ जाए तो वो बस जाती है अंदर. इट इज इन योर फीलिंग देन.
और केवल ऊपर ऊपर से 4 फॉर्मूले पढ़ोगे या कुछ डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो हिस्ट्री तरह टाइप, मतलब फॉर मी हिस्ट्री वाज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, आई डोंट नो इन योर केस। तो फिर वही होता है, डेफिनेशन रटे भी भूल गए, फॉर्मूला भूल गए, क्या था चार्ज, क्या था चार्ज, है ना, वैसा टाइप फिजिक्स में नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड इट यू कैन solve question conceptually. That is why physics is the easiest of all 3 subjects. ठीक है, तो बस समझ में आना चाहिए टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एक तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। टू लाइक चार्जेस रिपेल, unlike charges attract. Okay, this is correct. Correct. This is correct, but under terms and conditions apply. वो क्या है वो समझ। दो पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। What about one positive and one neutral? Attract, but वो तो यहाँ नहीं लिखा है। समझ क्या लिखा, अट्रैक्ट कौन करेगा? Unlike charges, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। Suppose if this is a charge, this is a neutral body. अभी हम कुछ कंडीशन समझ रहे हैं। This is a neutral body. सर लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करेगी और अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करेगी ना? Conditions apply, not necessarily. वो कंडीशन ही अभी हम समझ रहे हैं। Under what condition this will fail? Under what condition this will fail? एक है पॉजिटिव चार्ज, this is a point charge, और एक दूसरी बॉडी है। What is the difference between point, particle and body? न्यूटन ने जो भी बनाया वो सब एक पार्टिकल के लिए, पार्टिकल में मास होता है लेकिन वॉल्यूम नहीं, साइज नहीं, दो सरफेस। बॉडी इज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल हैविंग वॉल्यूम हैविंग डिफरेंट सरफेसेस। अगर एक चार्ज को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें चार्ज नहीं है, तो सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, बट देयर इज अट्रैक्शन। हाउ? ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, negative will come on the closer surface and it will repel the positive charge, that positive will go on the outer surface, the surface. अभी टोटल चार्ज तो जीरो ही है ना, ये चार्ज है और ये न्यूट्रल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, उसने इस पॉजिटिव ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और दूसरे सिमिलर चार्ज को रिपेल किया, which is not possible in the case of point charge, क्योंकि दो सरफेस ही नहीं है। नहीं समझे? टोटल चार्ज तो जीरो हो गया ना बेटा, जितना इतना आएगा माइनस क्यू, इतना प्लस क्यू है, व्हाट इज द टोटल चार्ज? स्टिल न्यूट्रल, बॉडी में चार्ज नहीं ना, बस चार्ज का सेपरेशन हो गया। ना ना, ये तो रिएक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव से होगा, लेकिन नहीं समझते। अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज बाहर रखा है, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और दूसरे वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन जो पास में है उसका फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पॉजिटिव के पास कौन है? नेगेटिव, दूर है पॉजिटिव चार्ज, सो द चार्ज व्हिच इज क्लोजर, उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। चार्ज तो सेम ही है, उसके डिस्टेंस ज्यादा, उसका फोर्स कम हो जाएगा। F1 will be greater than F2, which means overall it will be attract. So किसी एक चार्ज में सर वो पॉइंट चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज है क्या? हाँ पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव में ले सकते हो। If you start with negative charge, then also the same phenomena. If you start with negative charge, negative इसके अंदर के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, it will attract all positive charges and it will repel the negative. Total still zero. Correct? ये जो phenomena है जिसकी वजह से अट्रैक्ट कर रहा है, this phenomena of separation of charges due to the presence of external charge, this phenomena is called
induction. The phenomena of separation of charges due to the presence of an external charge nearby in a body is called induction. इस बॉडी ने इसके अंदर इंड्यूस किया नेगेटिव को अपनी तरफ, पॉजिटिव को दूसरी तरफ, नेगेटिव वाला पास में आ गया, पास वाले का फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है, ओवरऑल इट इज अट्रैक्टिव. एग्जांपल जैसे वो कॉम्ब बोलने से, कॉम्ब को अगर हम ड्राई एयर से रब करते हैं और एक पीस ऑफ पेपर, हमने रब किसको किया? ओनली कॉम्ब. चार्ज किसको दिया? कॉम्ब को. लेकिन अट्रैक्शन उसने पीस ऑफ पेपर को भी कर लिया. पीस ऑफ पेपर को उन्होंने टच भी नहीं किया, उसको तरफ नहीं किया. A charged body attracts a neutral body by which phenomena? Induction. इंडक्शन की वजह से इसके पास वाले पे अपोजिट चार्ज आ जाएगा, दूसरी तरफ वाले पे पॉजिटिव, एंड एज अ रिजल्ट इट विल बी अट्रैक्टेड. सो अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स न्यूट्रल बॉडी. अब यहाँ पे वर्ड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज बॉडी. अ चार्ज कैन नॉट अट्रैक्ट न्यूट्रल पॉइंट चार्ज, क्योंकि पॉइंट में ऐसे दो सरफेस ही नहीं होंगे जिनमें इंडक्शन हो सके, then there will not be any possibility of attraction, right? But इसमें चार्ज है क्या? Is there a charge in this body? No, क्योंकि जितना एक तरफ नेगेटिव आएगा दूसरी साइड पे उतना ही पॉजिटिव. अरे यार डरो मत. उससे डरो, कोविड से डरो, फिजिक्स से डरो. लग रहा है यार डर तुम्हारी आंखों में. Let's be comfortable. सेकंड केस में भी ऐसे ही कुछ हुआ. नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड, नेगेटिव इज रिपेल्ड. एज अ रिजल्ट, सो चाहे हम स्टार्ट करें पॉजिटिव से या नेगेटिव से, इट विल ऑलवेज हैव अट्रैक्शन. राइट. ओके, अब इसमें एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि अगर ये चार्ज भी पॉजिटिव है एंड दिस साइड इज आल्सो पॉजिटिव, तो भी अट्रैक्शन, क्योंकि अगर इंडक्शन डोमिनेट कर जाए, इफ क्वेश्चन ये जो आया हुआ एग्जाम में, कैन टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर? आंसर इज यस. कैसे हो सकता है ऐसा? बिकॉज ऑफ द फेनोमेना ऑफ इंडक्शन. समझते हैं हम इसको. ये 1997 जेई में क्वेश्चन आया हुआ है. कैन टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट? आंसर इज कैन टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट? आंसर इज यस. सर उसके लिए एक पॉइंट चार्ज चाहिए होगा ना? नहीं बेटा, पॉइंट चार्ज नहीं चाहिए, बॉडी चाहिए. कैन टू सिमिलरली पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट? आंसर इज नो, क्योंकि पॉइंट चार्ज में इंडक्शन का कोई चांस नहीं. राइट. अब जो अट्रैक्शन की बात हुई उसमें भी फिनोमेना कब ऐसा पॉसिबल है? That's why I marked a star. This property is applicable only and only for point charge. For a body big size, for point charges, for a big size body, it can be anything. Anything मतलब दो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक पॉजिटिव न्यूट्रल भी अट्रैक्ट कर सकता है, दो नेगेटिव. कैसे? Suppose there is a point charge and there is a big size body. साइज बड़ा है बट चार्ज बहुत है. ये सब थोड़ा बॉडी की बात की. एक पॉइंट चार्ज और एक बॉडी, तो पॉइंट चार्ज बॉडी तो है ना. नहीं सर, अरे बॉडी में थोड़ा बड़ा कर दिया, पॉइंट चार्ज तो ऐसे बोलते हैं ना, कर लो. पर दोनों के साइज में डिफरेंस ज्यादा और पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड दूसरे से बहुत ज्यादा. इफ Q1 is very large. एग्जाम्पल के लिए अगर हम Q1 को ले लेते हैं, लेट्स से 10 कूलम, ऐसे हाइपोथेटिकली. Q2 is positive, still positive but very small, micro coulomb. Micro is 10 raised to power -6. है दोनों पॉजिटिव, भी पॉजिटिव है. दिस इज आल्सो पॉजिटिव, बट इस पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले से बहुत ज्यादा है. 10 कूलम का इंडक्शन बहुत ज्यादा होगा, बट ऑब्वियसली बिकॉज चार्ज बहुत ज्यादा है,
so it will cause huge amount of negative charge on the closer surface, right? फिर चार्ज बढ़ा है, इंडक्शन ज्यादा होगा, इसने रिपल्शन भी किया, मतलब इसने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, तो सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। जैसे एग्जांपल, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव चार्ज है -10, तो पॉजिटिव 10 इधर आएगा और 1 पहले से था, so which means the total charge on the right side become +11 माइक्रोकूलम। ये समझ आ रहा है? क्योंकि टोटल चार्ज कितना था इस पे 1, still there should be 1 माइक्रोकूलम चार्ज, तो ये 10 कूलम और ये -10 और ये +11, राइट? अगेन सही है वैसे बेटा इसमें टोटल चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम, इधर में रखा है 10 कूलम, इसने बहुत सारा इधर चार्ज इंड्यूस कर, इसने सपोज इंड्यूस किया -10 इधर, दूसरी तरफ +10, इक्विवेलेंट कॉस्ट, तो +10 और +1 तो इसमें पहले से था, +1 पहले से कितना ना उसके पास, टोटल कितना हो गया 11, समझ गए ना? किसी भी इंडक्शन से एक तरफ नेगेटिव, दूसरी तरफ उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस, इधर -10 इधर +10 और 1 इसमें ऑलरेडी था, इंडक्शन से ये हुआ ना, और because there is already 1 microcoulomb charge, so total positive charge in this body is 11. इस 10 कूलम का -10 के साथ अट्रैक्शन, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है मतलब साइज बड़ा है, तो उसके रिपल्शन से ज्यादा हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द साइज। जो इस 1 माइक्रोकूलम की वजह से फोर्स बढ़ रहा है, वो डिस्टेंस की वजह से ओवरकम हो सकता है, डिस्टेंस का फैक्टर डोमिनेट करेगा, तो रिपल्शन विल बी रिड्यूस्ड। So can you please repeat this? बेटा माइक्रो मतलब 10 to the power -6, तो फिर वो 11 माइक्रोकूलम वही से स्टार्ट है, कहां 10 कूलम है और कहां -10 कूलम आया, -10 माइक्रोकूलम है, दिख नहीं रहा है ना बीच में? सर अगर वो बड़ी वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो F1 क्यों ग्रेटर है? फिर से shift and delete from again. There is a charge and there is a big size body. इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, but the amount of charge is very very less and size is bigger. बड़ा साइज है मतलब बहुत सारा सरफेस है, ये Q1 this is Q. Q1 हमने लिया अभी एग्जांपल के लिए 10 कूलम, 10 कूलम। Q2 हमने लिया एग्जांपल के लिए दूसरी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव है बट छोटा सा, 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम। इसके कंपैरिजन में ये 10⁻7 टाइम्स बड़ा है। Yes, sir. Right? This positive will induce negative on the closer surface. Negative attract करेगा, positive को repel करेगा। इस बॉडी के अंदर से बहुत सारा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होके आ गया पास वाले सरफेस। वो मैंने ऐसे ही रैंडमली एक नंबर चूज कर लिया था, आप कुछ भी ले लो, 100 ले लो, सपोज वो -100, क्योंकि इंडक्शन है, इंडक्शन से चार्जेस रिलेटिवली कम होंगे, खुद 10 है तो 10 इंड्यूस नहीं करेगा, कम करेगा, राइट? इधर -10 क्या, लेकिन टोटल चार्ज कितना है इसका ऑलरेडी +1, राइट साइड पे जितना इधर नेगेटिव उतना इधर पॉजिटिव करेगा 100, और एक इसमें ऑलरेडी था, सो टोटल हो गया 101 माइक्रोकूलम। ये चार्ज तो कंधे में रहेगा ना, जितना चार्ज पहले था बॉडी में उतना चार्ज बाद में भी होना चाहिए, चार्ज गायब थोड़ी हुआ। टोटल चार्ज कितना है 101 और -100 मींस स्टिल टोटल चार्ज इज 1 माइक्रोकूलम। फिर 1 माइक्रोकूलम का वो इसमें कर दिया ना यार, इंडक्शन तीसरा अपनी तरफ, पर इसमें तो फाइल को इलेक्ट्रॉन थे ना उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन तो सारे एटम में है ही, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर किस गए, प्रोटॉन रिपल हो गए, जबरदस्ती नहीं है, इंडाइजेशन हो जाता है। फिर से हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, न्यूट्रल बॉडी, ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल बॉडी, इसके पास वाले पे नेगेटिव करके आएगा, हाउ इट रिक्वायर्स नेगेटिव चार्ज,
ये पॉजिटिव के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट, दिस पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। निकाल दिया अंदर के इलेक्ट्रॉन, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दूसरी तरफ, राइट। ये था न्यूट्रल बॉडी में जो फॉर्म वाली, ठीक है। बोलो तभी तो दोनों तरफ सेम नहीं है ना, क्योंकि एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा है, क्योंकि टोटल अभी भी 1 होना चाहिए। तो मैं न्यूट्रल बोला ही था, तो वो तो उसको समझा रहे हैं। न्यूट्रल में जो हुआ था भाई यहाँ पे हो रहा है, बट क्योंकि इसके पास थोड़ा सा पहले से था, वो पॉजिटिव वाले में ऐड हो गया। न्यूट्रल में क्या होना, इधर आएगा -10, इधर आएगा +10, क्योंकि न्यूट्रल है। अभी इसके पास 1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑलरेडी था, वो भी पॉजिटिव में ऐड हो गया। यस मिस्टर निखिल बताओ। नहीं कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर करो, कंफ्यूजन में लाइक रिलैक्स, टेक डीप ब्रीथ एंड आस्क व्हाट इज द डाउट। एनीबॉडी ऑनलाइन, किसी को नहीं समझ में आया फिर से पूछो। मैं एक क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ जो 1997 जेई में आया था, 2 मार्कर। Can two similar charged bodies attract? Answer is yes. As long as they are bodies, वो attraction कर सकते हैं। किस केस में? जब एक चार्ज दूसरे से बहुत बड़ा हो और size of the body is much larger than the other. Induction, size से distance का फर्क पड़ जाएगा ना। अभी क्या है? ये 100 माइक्रोकूलम का attraction, अगर यहीं पे 101 रखा होता तो obviously उसका repulsion ज्यादा होता। अभी बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस जो 1 माइक्रोकूलम का रिपल्शन था वो और कम हो गया, उसका इफेक्ट उतना नहीं है जितना कि डिस्टेंस था, राइट। अट्रैक्शन किसके बीच में? 10 कूलम और -100। रिपल्शन किसके बीच में? 10 और 101 के बीच। चार्ज तो 1 माइक्रोकूलम बड़ा है, लेकिन इनकी बॉडी का साइज ज्यादा था, इसलिए जो डिस्टेंस की वजह से इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। नहीं भी हम ये कह रहे हैं कि हमेशा होगा, वो इसके साइज पे डिपेंड करता है। So two similar charged bodies may attract. MAY may means must नहीं है, can नहीं है, always। डिपेंड किस पे करेगा? साइज और एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का चार्ज कितना ज्यादा है, इस पर डिपेंड। अंडर दैट कंडीशन ऐसा हो सकता है कि बॉडी में एक ही जैसा चार्ज है फिर भी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। टू सिमिलर चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। बेटा किसी को डाउट ऑनलाइन पूछ को वैभव। Sir, F1 is greater than F2. Why? Because it is closer, very close. इसका साइज बड़ा हो गया, वो दूर हो गया। फोर्स का फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, अगर डिस्टेंस R ज्यादा square. होगा, डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फोर्स कम हो जाएगा, इसलिए F2 is reduced। Okay, sir. समझ गया? हो गया, गले के नीचे उतरा नहीं? दिमाग हैंग हो गया, ज्यादा पढ़ लिया एक साथ, वो भी हो जाता है लंबे समय के बाद। इतनी लंबी क्लास होती है ऑनलाइन, तो म्यूट वीडियो ऑफ, चलिए सो गया। हाँ ऐसे ही चला पूरे साथ। वेरी नाइस। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, दिस इज एप्लीकेबल। जब इसमें इसको एग्जैक्टली एग्जांपल क्या लिखेंगे? टू लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड टू अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, समझने के लिए हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी समझ आ रहा है? ये लास्ट पॉइंट आ गया। एक चार्ज और एक न्यूट्रल बॉडी में भी अट्रैक्शन होता है, और दो सिमिलर चार्ज बॉडी में भी अट्रैक्शन हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग इट विल बी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब एक चार्ज इतना बड़ा हो कि वो दूसरे चार्ज के ओवरकम कर ले बिकॉज ऑफ द इंडक्शन। इंडक्शन प्लस इट्स साइज। ओके, वेरी गुड। सेकंड प्रॉपर्टी, second property is called additive property of charge। Additive property of charge।
Time is over. कोई बात नहीं. We started little late. अब बीच में वाला 5 to 10 minutes का आपके लिए ब्रेक भी होगा, मतलब वो बाय डिफॉल्ट है, आपके टाइम टेबल में नहीं लिखा हुआ है. Those who are attending maths class also, मैथ्स क्लास भी है. इन क्लासेस ज्यादा थोड़ी, तो स्कूल में तो कितनी होती रहती है, 6 7 8. स्कूल में पढ़ता कौन है? वो एक पॉइंट है. एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब किसी भी सिस्टम में सपोज हम बहुत सारे चार्जेस दे दें, पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव दिया, फिर Q3 Q4 and so on. So a simple सा है, the total charge on the body on a system is always equal to algebraic sum of all the charge. Algebraic sum का मतलब पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव नंबर की तरह लेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव की तरह लेंगे. The total charge given is always equal to algebraic sum of all the charges. अब इसमें प्रॉपर्टी क्या है? What is the property here? Because हमने एक बात की थी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आर नॉट लाइक नंबर्स. नंबर के केस में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से बड़ा होता है. चार्ज के केस में इट इज डिफरेंट प्रॉपर्टी, लाइक बीइंग गुड और बैड. अगर हम 5 अच्छी और 5 बुरी आदतें हैं, then it may not be true that the person is neutral. 5 बुरी बहुत खराब भी हो सकती है, बट चार्ज के केस में ऐसा नहीं है. दो दे आर प्रॉपर्टी बट स्टिल दे कैन बी एडेड लाइक numbers, and that is why it is called additive property of charge. Positive and negative charges can be added like positive and negative numbers. Correct? Okay. Hello, I think parents से wait करने टाइम हो गया. अभी बहुत कुछ है इसमें. There is one more class which is not in NCERT. कुछ ऐसी चीजें और हैं, तो वो हम कल करेंगे same time tomorrow. But take it as a demo class, but this will not be taught further. ये सेम क्लास आगे कंटिन्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम्स लॉ एंड ऑल. सो डेमो का मतलब ये नहीं कि हम लोग जादू दिखा रहे हैं, बार बार दिखाते रहेंगे. इट इज द योर क्लास लेक्चर ऑलरेडी स्टार्टेड. मेक नोट्स, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. समय बहुत कीमती है, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू. Excuse me, sir. टुमारो फ्रॉम हियर. यस सर, जो वीकडेज की क्लास थी वो आपने रिकॉर्डेड प्रेपडोर पे है क्या? बेटा, अभी ना मैंने प्रेपडोर नहीं, इस बार हमने 2-3 और नए एप्लीकेशंस बना लिए हैं बेटर देन प्रेपडोर. अभी प्रेपडोर पे नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये आपके ग्रुप में आपके 100+ वाले ऐप में आ जाएगी, एंड्रॉइड वाले. आई विल टेल, अभी नहीं, कुछ टाइम के